everyone, I am Anuja. Welcome back to my channel. How are you doing all? Yes, today I am here to discuss the topic on rational numbers. But before that, please like and subscribe my channel. For those who are watching my session for the very first time, do visit my earlier sessions also. Students, the content of the session has been carefully chosen by me to build a basic understanding on the topic. I will try to explain the topic in very simple way so that it is easily understandable to all of you. Let's begin with the topic, that is rational numbers. First, we will discuss types of numbers. In this series, first is natural numbers. Natural numbers are the numbers which start from 1 and goes indefinitely. They are represented by capital N. Natural numbers 1 से शुरू होते हैं and ये infinity तक जाते हैं. 1, 2, 3, 4 and so on, and they are represented by capital N. Second is whole numbers. Whole numbers are also natural numbers but including 0. Whole number में 0 भी आता है. That is, all natural numbers along with 0 are called whole numbers. They are represented by capital W. So we can write as 0, 1, 2, 3, 4 until infinity. Next is integers. Integers are positive as well as negative. So all positive natural numbers and all negative natural numbers with 0 are called integers. So we can say कि natural numbers and whole numbers ये सब integers हैं along with the negative natural number, जिसमें negative natural numbers भी आएंगे, जैसे -2, -3, -4, -8, -9 whatever minus infinity तक. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से and we can write like this. माइनस इन्फिनिटी से ये गया, then -4, -3, -2, -1, then 0, positive 1, 2, 3, 4 until infinity. And next is even numbers. Even numbers represented by capital E, and all knows कि all natural numbers that are exactly divisible by 2 are called even numbers. जो numbers 2 से divide होते हैं they are called even numbers. या हम ऐसे बोलते हैं कि बड़े से बड़े नंबर जिनकी यूनिट डिजिट इवन होती है 2, 4, 6, 8 या 0 होती है, दे आर डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. ये इसका ऑपोजिट होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते. ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, एंड ऑड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O. वी कैन राइट लाइक दिस 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन टिल infinity. Now come to the topic. This is rational numbers. Rational numbers, what is rational number? Rational number एक collection है, that is integers, fraction and negative fraction, जिसमें integers भी आ रहे हैं, हमारे fractions भी आ रहे हैं और negative fractions भी आ रहे हैं. In natural numbers we can say if a term is in P by Q form, P by Q form, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि Q 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब उसका denominator is not equal to 0. P by Q form is known as the rational number. तो एक बार definition देख लेते हैं. They are the collection of integers, fraction and negative fractions. Any number that can be represented in the form of P by Q where Q is not equal to 0 is called rational number. Rational numbers are represented by capital Q. तो Q is equals to, ये भी माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो गए. अब इसमें हमारे फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं 3/2 या नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं -1, -2 वटेवर, 0, 1, 5, 12/2 टिल इन्फिनिटी. ये सब हमारे आ रहे हैं रेशनल नंबर्स में. अच्छा, हम यहाँ 0, 1, 5 सबको रेशनल नंबर बोल रहे हैं. क्यों? बिकॉज वी कैन पुट 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ 0, 1, 5 एक्सेट्रा. अभी हम और पॉइंट्स देखेंगे, इट विल बी क्लियर. यस, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमने कहा था Q इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें डेफिनेशन में देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0. अगर Q डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड. उसको कई लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट. नॉट डिफाइंड ही बोला जाता है इसमें. वी कैन, नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन रिप्रेजेंट एनी इंटीजर इन रेशनल नंबर बाय डिवाइडिंग इट बाय 1. अब कोई भी नंबर है, चाहे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है या नेगेटिव नेचुरल नंबर है, उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं. कैसे?
जब उसके नीचे हम 1 लगा दें, मतलब उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा दें, दैट इज इन द p बाई क्यू फॉर्म। अब आप देखिए एग्जाम्पल में 5 इज इक्वल टू 5/1, तो यहाँ p5 है, q1 है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दिस इज अ रेशनल नंबर। ऐसे ही -8 है, दैट इज -8/1, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सिमिलरली 0 इज इक्वल टू 0/1, तो 0/1 भी रेशनल नंबर है। Next point is, if both the numerator and denominator of a rational number negative, अगर ऊपर नीचे दोनों में नेगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं द रेशनल नंबर विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ ईदर द न्यूमरेटर और अ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज नेगेटिव, अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं भी नेगेटिव साइन होता है रेशनल नंबर्स में, तो उसका आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है। उसको सॉल्व करने का तरीका भी है, अगर नीचे माइनस में है तो हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड न्यूमरेटर नेगेटिव, तो वी कैन राइट इन नेगेटिव। एक ये आप पॉइंट भी लर्न कर सकते हैं, उसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो हमारी इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स वेदर द सिस्टम ऑफ नंबर्स इज क्लोज्ड और नॉट अंडर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होंगे? एडिशन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये प्रॉपर्टी क्लोज है कि नहीं है, इसका मतलब दो रेशनल नंबर है, अगर उनको ऐड करेंगे, अगर उसका आंसर भी रेशनल नंबर आता है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी क्लोज है एडिशन में। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं हम, अगर दो नंबर है, अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, उसका आंसर अगर आपका रेशनल नंबर में ही आ रहा है, दैट इज द क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम चलिए विद एग्जाम्पल वी विल सॉल्व इट। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होते हैं रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, ये प्रूव है। इसका हम प्रूफ देखते हैं, दैट इज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करके देखेंगे, यू विल गेट द रेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। -4/5 एंड 2/10 आर टू रेशनल नंबर्स एंड दियर सम। सॉल्व करते हैं, -4/5 प्लस 2/10। टेक एलसीएम, 5 एंड 10 का एलसीएम 10 आएगा, देन 5 से आप डिवाइड करते हैं एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। यू, आई थिंक ये सबको आता ही होगा, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो। तो 5 2 ज़ा 10, 8 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 2 4 ज़ा 8 माइनस में, प्लस 10 1 ज़ा 10 2, -8 प्लस 2 क्या आएगा? माइनस का 6, डिनोमिनेटर में 10 है, तो -6/10 ये भी तो एक रेशनल नंबर है, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हम कह सकते हैं यस, रेशनल नंबर आर closed under addition. Next, we will check it for subtraction. Similarly, rational number are closed for subtraction as well. That is, the difference of two rational number is a rational number. ऐसे ही अगर आप दो रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। करके देख लेते हैं एग्जाम्पल से। -4/5 एंड 2/10 आर टू रेशनल नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज -4/5 -2/10। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, -8 -2, -8 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10, -10/10 इज अ रेशनल नंबर। अब -10/10 को अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो हमें माइनस का 1 मिलता है, और -1 के नीचे अगर आप 1 लगा देते हो, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टीज में देखा है कि नीचे हम 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो दैट इज द रेशनल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे कह सकते हैं? अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, अगर वो भी रेशनल नंबर आता है, दैट मीन्स इट इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। तो रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, -4/5 एंड 2/10 आर टू रेशनल नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट विल बी -4/5 इंटू 2/10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस 4 2 ज़ा 8 एंड 5 10 ज़ा 50। इट्स नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा था कि नेगेटिव ही होता है उसका आंसर अगर एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कहीं भी माइनस होता है। दिस इज द रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होती है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिवीजन। सिंपल है, डिवीजन कभी तो होल्ड कर सकती है पर कभी कभी नहीं भी करती है। वो कब नहीं करती है? अगर हम उसे 0 से डिवाइड करें, बिकॉज 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, दैट इज इफ वी डिवाइड
a rational number by another, it may be possible that we will not get a rational number. कभी कभी तो हमें मिलेगा rational number. For example, if we divide 2 by 3 by 0, the answer will be not defined. Hence closure property does not hold for division. वैसे डिवीजन कर सकते हैं हम उसको रेसिप्रोकल करके, बट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है डिवीजन में. I hope this is clear to you all. Next is second property is commutative property. अब commutative property को भी हम ऐसे ही चेक करेंगे one by one for all the arithmetic operation. First is if star is any operator which can be plus, minus, multiply और division. किसी भी arithmetic operation के लिए हमने एक star ले लिया है यहाँ पर. तो then commutative property will hold true for any operator. अब commutative property कैसे hold करेगी चेक करने के लिए, इसका ये मीनिंग होता है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a. मतलब अगर हम a में b को प्लस करते हैं तो अगर b को a में प्लस करें तो भी आंसर वही आना चाहिए. a को b से मल्टीप्लाई करें, b को a से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर वही आना चाहिए. सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली फॉर डिवीजन. अब किस किस में ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है हम देखते हैं. सो लेट अस चेक. फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. अब कोई भी दो रेशनल नंबर्स हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए. लाइक 2/3 एंड 1/2 हमने ले लिया. तो 2/3 प्लस 1/2 इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक, एलसीएम 3 एंड 2 का 6 आएगा. 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3/6, देन 4 और 3 7 होता है, 7/6. सिमिलरली चेक 1/2 प्लस 2/3, इसको उल्टा करके चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर 7/6 ही आ रहा है. दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन. एडिशन के लिए होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. या ऐसे बोल सकते हैं p/q प्लस r/s. कोई नंबर ले लीजिए, दैट इज r/s प्लस p/q, वट एवर इन रेशनल नंबर वी कैन से दैट. नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. अगर हम बेसिकली सोचें, सिंपल आप इंटीजर्स के लिए चेक करें. अगर आप 2 में से 3 माइनस करते हैं और 3 में से 2 माइनस करते हैं, क्या आंसर सेम आएगा? नो, बिकॉज 2 minus 3 is -1 and 3 minus 2 is 1 and 1 and -1 are not equal. So चलिए let us check with the rational numbers. Let 2/3 and 1/2 be two rational numbers. Then 2/3 minus 1/2, check it, take LCM. 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 minus 3 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 6 नीचे रहेगा. 2 2 ज़ा 4 minus 3, 4 minus 3 होता है 1/6. सिमिलरली अब उल्टा चेक करेंगे, 1/2 minus 2/3, सॉल्व कीजिए. 6 LCM, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 minus 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6. अब चेक करो, 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6. ये तो बहुत दूर चला गया, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में. सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर. नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है. यू कैन चेक विद द इंटीजर्स ऑल्सो. इफ 2 into 3, 2 3 is 6 and 3 into 2 is also 6. So commutative property holds for integers as well as commutative property holds for rational numbers. Check with the example. Let 2/3 and 1/2 be two rational numbers. Then 2/3 into 1/2. Solve it. Multiply numerator by numerator and denominator with the denominator. 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2/6. इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर लीजिए. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 आ रहा है. सिमिलरली अब उल्टा करेंगे, 1/2 इंटू 2/3 सॉरी. तो देन वी विल गेट 1 2 ज़ा 2 अपॉन 2 3 ज़ा 6, 2/6. सॉल्व कीजिए, 1/3. Then we can say 1/2 into 2/3 is equals to 2/3 into 1/2. Hence commutative property holds for multiplication in rational numbers. Next is commutative property for division. अब अगर हम इसे चेक करते हैं, ये नहीं होल्ड करता है. आप सिंपल भी देख सकते हैं. अगर आप 5 and 10 लेते हैं, इफ़ यू डिवाइड 5/10 और 10/5, आपको आंसर सेम मिलेगा? नो. So let us check. Let 2/3 and 1/2 be two rational numbers. Then 2/3 divided by 1/2. अच्छा, डिवाइड कैसे करते हैं? फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा है कि डिवाइड करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं टर्म को. तो 2/3 डिवाइड का साइन हटाएंगे या मल्टीप्लाई 2/1.
तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4/3 आया। सिमिलरली अब चेक करिए उल्टा करके, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, इट इज़ 1/2 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 इंटू 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। तो अब चेक करिए 4/3 क्या 3/4 के इक्वल है? नो, सिंस this term is not equal to this term, hence commutative property does not hold for division in rational number. So division के लिए commutative property hold नहीं करती है, multiplication के लिए करती है, subtraction के लिए भी नहीं करती है, addition के लिए करती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं commutative property holds for addition and multiplication. Our next property is associative property. Definition is, if star is any operator which can be plus, minus, multiply or divide, then associative property will hold true for any operator if A star in bracket B star C bracket closed is equal to A star B in single bracket star C, where A, B and C are any three rational numbers. So let us check them for each operator one by one. अब इसका सिंपल मेथड ये समझेंगे, अगर तीन हमें रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उसको हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग हमें इसी फॉर्म में सॉल्व करके देखना है। मतलब पहले हम फर्स्ट नंबर अलग रखेंगे, देन बाकी टू नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, और नेक्स्ट उसमें दो नंबर्स का करेंगे एंड देन थर्ड वाले को अलग रखेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। अगर आंसर सेम है दैट मीन प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अदरवाइज नो। सो लेट अस चेक वन बाय वन। फर्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो थ्री रेशनल नंबर्स हम ले लेते हैं, दैट इज -1/2, 2/3 एंड 5/6 आर थ्री रेशनल नंबर्स। देन फर्स्ट क्या हमने पढ़ा है, इन ब्रैकेट पहले हम चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में और सी को अलग। तो सॉल्व करिए, 2 3 ज़ा 6, एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6, -3 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा -7/6 प्लस ये सेपरेट रहेगा -3 प्लस 4 इज 1, 1/6 प्लस 5/6, देन वी गेट हियर एलसीएम लीजिए 6, 1 प्लस 5, 6/6, तो आंसर आ गया हमारा 1, 6 1 ज़ा 6, 1 by 1 भी आप कह सकते हैं इसको रेशनल नंबर में। अब ऑल्सो अब आप चेक करेंगे वापस से फॉर्मूला वाइज, इसमें फर्स्ट वाली टर्म को सेपरेट रखना है, -1/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस बाकी की जो दो टर्म्स हैं उनको आपने एक साथ ऐड करना है, 2/3 प्लस 5/6। अब 2/3 प्लस 5/6 को ऐड करेंगे, एलसीएम लीजिए 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 आ गया 9/6, ये तो -1/2 जो अलग चल रही थी अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 2 और 6 का एलसीएम लीजिए 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, -3 प्लस 9, -3 में प्लस 9 करेंगे, देन इंटीजर्स पढ़ा है सबने, 9 - 3 6 होता है, तो 6/6, तो यू गेट 1। तो आप कह सकते हो ये दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, सो वी कैन से कि -1/2 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू -1/2 ऐसे ही बाहर रहेगा, प्लस अदर ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/6 ब्रैकेट क्लोज। दैट मीन्स एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड करती है। Therefore, associative property holds for addition, which means that three rational numbers can be grouped in any order. इसको group भी बोल सकते हैं, but the sum will be same. Next, associative property for subtraction. अब ये भी चेक कर लेते हैं, वैसे ये होल्ड नहीं करती है, अब कैसे, let us check. थ्री रेशनल नंबर्स एग्जाम्पल के लिए ले लिए हमने। फर्स्ट वी विल डू -1/2 एंड 2/3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेपरेट रखेंगे -5/6 को। सॉल्व कीजिए, 2 3 ज़ा 6 इज द एलसीएम, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, -3 -4 ब्रैकेट क्लोज, -5/6 ऐसे ही रहेगा। अब -3 और -4 होता है माइनस का 7/6 माइनस बीच में रहेगा 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम है, -7 -5 माइनस का 12/6। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, देन वी गेट -2। अब नेक्स्ट मेथड क्या है कि आपने फर्स्ट वाली टर्म को सेपरेट रखना है और माइनस का साइन लगाना है, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है, 2/3 माइनस 5/6। अब आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी गेट हियर, इट्स -1/3। सो क्या -2 इज इक्वल टू -1/3? नो, hence -1/2 minus 2/3 in one bracket minus 5/6 is not equal to -1/2 minus 2/3 minus 5/6। तो ये हमारे कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती है। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम।
दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन. -1/2, 2/3 एंड 5/6 आर 3 रेशनल नंबर्स. देन अब इसमें भी वही मेथड अप्लाई करना है आपने. पहले फर्स्ट 2 को करना है, थर्ड को सेपरेट रखना है और नेक्स्ट में फर्स्ट को अलग रखना है और नेक्स्ट 2 को करना है. देखिए -1/2 इंटू 2/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/6 अलग. अब पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2 1 2 माइनस का एंड 2 3 6. ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट का सोल्यूशन. अब इसे सॉल्व कीजिए. 2 5 10 माइनस 6 6 36. इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर देंगे. वी गेट -5/18 डिवाइड बाई 2. ऑल्सो -1/2 सेपरेट रहेगा इस बार. सेकेंड एंड थर्ड टर्म लेंगे आप. तो 2/3 इंटू 5/6. Multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator. You get 10/18. 2 5 10, 3 6 18. Now similarly solve for the -1 into 10 and 2 18 36. So -10/36. Simplest form में change कीजिए इसको. You get -5/18. So you can check कि this term is equals to this term. So hence we can say -1/2 into 2/3 in one bracket into 5/6 is equals to -1/2 separate into bracket start 2/3 into 5/6. So therefore associative property holds for multiplication, which means that while multiplying 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. ये किसी भी order में कह लीजिए आप कि किसी भी order में इनका group बन सकता है. That means अब next we can check associative property for division. ये hold नहीं करेगी. कैसे देखते हैं हम. -1/2, 2/3, 5/6 3 rational numbers हैं. Then पहले ये 2.2 लेंगे हम फर्स्ट और सेकेंड. डिवाइड करेंगे. डिवाइड का मेथड अभी बताया. -1/2 डिवाइड को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं एंड रेसिप्रोकल करते हैं टर्म को. 3/2 सॉल्व कीजिए. -3 1 3, 2 2 4 और ये डिवाइड का 5/6 अलग ही रहेगा. अब आप इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड के साइन को एंड रेसिप्रोकल द टर्म 5/6. जैसे 6/5 you get -3 into 6 is -18 upon 4 5 20. After simplify we get -9/10. 2 से ये कटिंग होगी इसकी. नेक्स्ट इज अब फर्स्ट टर्म को सेपरेट रखना है. -1/2 डिवाइड बाय अब 2/3 डिवाइड 5/6. अब सेकेंड और थर्ड टर्म को एक ब्रैकेट में रख के फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम. तो -1/2 ऐसे ही रहेगा. डिवाइड बाय ये सॉल्व कीजिए. 2/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया. 5/6 का रेसिप्रोकल होगा 6/5 एंड यू गेट -1/2. सिमिलरली डिवाइड का साइन ऐसे ही. 2 6 12, 3 5 15. अगेन सॉल्व. -1/2 डिवाइड को चेंज कीजिए मल्टीप्लाई. रेसिप्रोकल इट 15/12. यू गेट -15/24. आफ्टर सिंप्लीफाइंग what we get -5/8 with the table of 3. 3 8 24, 3 5 15. So now we can see कि -9/10 is not equal to -5/8. So this -1/2 divided by 2/3 is single one bracket. Divide 5/6 is not equal to -1/2 separate. Divide by next bracket 2/3 divide by 5/6. So therefore associative property does not hold for division. Move further. Next is existence of additive identity. अब आइडेंटिटी कोई ऐसी टर्म जिससे हमारा आंसर वही आए. सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझते हैं कि किसी भी टर्म में जब आप एडिशन की बात कर रहे हैं किसी भी टर्म को आप किससे ऐड करें कि आंसर वही आए. तो सिंपल 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर. वी कैन चेक इफ P/Q में वी ऐड 0 और अब इसे हम कम्यूटेटिव में भी लिख सकते हैं. 0 पहले लिख लीजिए. 0 + P/Q. सो P/Q you get. So here P/Q is a rational number. But identity property does not hold for subtraction. आप चेक कर सकते हैं. P/Q -0 आप करेंगे तो P/Q रहेगा पर 0 में से आप माइनस नहीं कर सकते हैं. 0 को आप प्लस करें या 0 से प्लस करें यू गेट द सेम आंसर. बट माइनस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है. So we can say identity property does not hold for subtraction. Next is existence of multiplicative identity. Multiplication में होती है आइडेंटिटी. क्या मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी पर 0 नहीं 1 होती है क्योंकि हमें आइडेंटिटी का मतलब है आंसर सेम चाहिए. अगर आप P/Q में 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को P/Q से मल्टीप्लाई करोगे यू गॉट द सेम आंसर P/Q where P/Q is a rational number. तो रेशनल नंबर में आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. अब इनवर्स क्या होता है किसी चीज़ का उल्टा. अब
एडिशन में अगर हम इन्वर्स चेक करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हमें आंसर 0 मिलना चाहिए इन्वर्स के लिए। तो एन थ्योरी देखेंगे, एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी नंबर इज सच दैट द सम ऑफ नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स मस्ट बी 0। दैट इज ए में क्या प्लस करे कि 0 आ जाए, माइनस ए। सपोज मैं आपसे पूछूं 2 में क्या प्लस करे कि 0 आ जाए, तो 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2, तभी तो आपको 0 मिलेगा। तो इस कह सकते हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 है, या -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 है। सिमिलरली हेयर a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो हेयर माइनस ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। अब रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं। इफ p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर देन माइनस p अपॉन q इज इट्स एडिटिव इन्वर्स। सिंस p अपॉन q में अगर आप माइनस p अपॉन q ऐड करोगे यू गेट 0। यस, द इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करिए, क्योंकि ए में अगर आप माइनस माइनस ए करते हो यू विल नॉट गेट 0। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ए और ए 2 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट होल्ड। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, इसीलिए इसका नाम भी एडिटिव इनवर्स है, ये एडिशन की प्रॉपर्टी में होल्ड करता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of any number is such that the product of number and its multiplicative inverse must be 1। multiplicative inverse किसी भी टर्म का क्या होता है? 1 होता है। मतलब किसी टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि आपका आंसर 1 आए। सपोज आपको a है कोई नंबर, a को अगर आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि 1 आए, तो 1 अपॉन a से करेंगे, a से a कट जाएगा। सपोज 2 है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, डैश लगा दूं मैं और 1 आंसर चाहिए, तो देन यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। वी कैन कैंसिल आउट 2 एंड 2, द आंसर इज 1। तो 1 अपॉन 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि 1 अपॉन a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, या a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन a, वाइस वर्सा। सिमिलरली इफ p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर देन अब p अपॉन q के लिए क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि q अपॉन p yes is its multiplicative inverse since p upon q into q upon p is equals to 1। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 अपॉन 3 है सपोज, तो 2 अपॉन 3 को अगर हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 3/2 होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा एंड 3 से 3 कट जाएगा, यू गेट 1 here। यस, so this is all the theory part of rational numbers। so this is the end of the theory part for today। I hope that this video must have cleared your all concept। so what to do? next topic में इसी से rational numbers के लिए I'll come with you for the questions। ठीक है, we will solve some more questions। go through the video, practice well and keep on viewing my channel, and I will be back with another interesting topic very soon। okay, till then take care, goodbye students, thank you, bye bye।